ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں لگا کے کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ ہم نے اس قرآن کو کبھی قبر نہیں کی، ہم کبھی بھی اس قرآن سے اونچا ہو کے نہیں جاتے۔ ہم نے اس دین کو اگر سمجھا ہے، اس کی اہمیت کو جانا ہے تو کیوں سن گئے؟ کس وجہ سے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں کھڑے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، مخاطبہ فرماتے ہیں حجر اسود، آپ فرماتے ہیں اے حجر اسود، میں خطاب کا بیٹا ہوں، تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں خطاب کا بیٹا ہوں، تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اور میں اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ تو جنت سے آیا ہے، تجھے حضرت آدم جنت سے لائے ہیں، قطعاً اس وجہ سے میں نے کبھی چوما ہی نہیں، تو میں تجھے اس وجہ سے چومتا ہوں کہ تجھے آمنہ کے لال میں چوما ہے، تیرے اوپر رحمت والے لب رکھے ہیں محبوب نے، میں تجھے اگر چومتا ہوں تو اس وجہ سے چومتا ہوں کہ تجھے قریب محبوب نے چوما ہے۔ اسی لیے ہم دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ اس دین کی بنیادوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے، اس دین کی بنیادوں میں میرے حبیب علیہ السلام کا دین ہے، خون ہے۔ اور دوسری بات کو سمجھیے گا، حضرت عبداللہ سے آگے آئے گی، مکے سے جب ہجرت فرما کے حضرت مدینہ طیبہ میں آئے گا، اسلام کا پہلا مارکا لگا میدان بدر، یہ پہلی جنگ ہوئی، پہلا غزوہ ہوا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اس کو جنگ عظیم بھی کہتے ہیں، اس کو جنگ فرقان بھی کہتے ہیں، کہ یہ فرق کرنے والی حق و باطل میں، یہ بہت بڑی جنگ تھی، بے شک مسلمان 313 تھے۔ جب میدان بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے صحابہ نکلنے لگے نا، تو مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو یہ صحابی تھے تو نماز پڑھی، یہ محبوب اسلام کا طریقہ کار رہا ہے، جب بھی جتنے بھی غزوات ہوئے حضور کی موجودگی میں، بعد میں صحابہ لڑنے میں لڑی ہے، جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو مسجد سے نفل پڑھ کے نکلتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پھر آگے نفل پڑھ کے پھر گھر ہو جاتے تھے۔ جب یہ مارکا ہوا نا، حضرت عبداللہ سے آبی ہے، بڑے جنگجو تھے، بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے سونے تھے، اور بڑے قدر اور بڑی جان کے تھے۔ انہوں نے دعا مانگی نماز کے بعد، تو دعا ساری دعا آہستہ، لیکن دو لفظ زبان سے نکلے تو ایسا کہہ نہ پائے، ان کو اونچی آواز سے کہا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کریم محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ، میدان بدر کے اندر ہم کافروں کا سامنا کرنے والے ہیں، مہربانی فرما میدان بدر کے اندر میرا سامنا ان لوگوں سے ہو، اللہ کرے میرا سامنا ان لوگوں سے کروانا، یا اللہ میری لڑائی، میرے ساتھ مقابلہ ان لوگوں کا ہو جن لوگوں نے تیرے مصطفیٰ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، جن لوگوں نے تیرے نبی کو ستایا ہے، یا اللہ میرا سامنا ایسے لوگوں سے کرنا جن لوگوں نے دین اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، دین اسلام کی اہمیت کو نہیں جانا، میرا سامنا ان لوگوں سے کروانا، میرا سامنا ایسے لوگوں سے کروانا۔ جذبہ دیکھیں، یا اللہ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے، ان کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہوئے، پھر چاہے میری جان چلی جائے، پھر چاہے میری شہادت ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نبی پاک کے اور دین کے دشمنوں سے سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ سامنا کیا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ان کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو یارو سنو، میرے محبوب علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، تو میرے محبوب اسے دیکھ رہے ہیں، اسی صحابی کو جو دین اسلام کے وقار کے لیے قریب محبوب
اور لڑ رہا ہے، میرے محبوب نے عرض کیا اللہ حضرت عبداللہ کی مدد فرمانا، اس لیے کہ یہ تیرے دین کی مدد کے لیے نکلا ہے، یہ تیرے اسلام کی امداد کے لیے، یہ تیرے اسلام کی مدد کے لیے نکلا ہے، یا اللہ مدد فرمانا۔ صاحبوں پھر میرے محبوب علیہ السلام کے بھی ہاتھ اٹھے، تو دعا کس کے لیے؟ جو دین اسلام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، دین اسلام کی قدر کو جانتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ ماحول یقین مانیے بڑا کبھی کبھی افسردہ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تنہائی میں ہوتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، لوگوں کے رویے دیکھ کر، لوگوں کی سوچ دیکھ کر آنسو بھی نکلتے ہیں، اور کر کچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس یہی محراب نعمت کی طاقت ہے، ہم صرف یہاں سے بیان کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے آپ کے سامنے گزارشات کر سکتے ہیں، لیکن کاش ہم اس اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، کاش ہم اس اسلام کو جانیں، ہمارے رویے کیا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا انداز کیسا ہے۔ ماؤں نے جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ماؤں کی تجربہ بتاتی ہے، کیا اہتمام ہوتا ہے صبح اٹھ کے، کتنی کوشش ہوتی ہے ان کی، کتنی مانی گزارش ہے، درخواست ہے بچوں کو بھیج دے۔ یارو یہ رویہ کیا ہے، یہ سوچ کیا ہے؟ آپ کا بچہ انگلش پڑھنے جاتا ہے، کبھی سکول میں اعلان ہوا ہے؟ بولیے ذرا، بتائیے کبھی سکول سے استاد لینے کے لیے آیا آپ کے بچے کو؟ کبھی سکول سے بچہ لینے کے لیے آیا آپ کے بچے کو؟ ان کو 1 مہینے کے بعد فیس سے غرض ہے صاحب، آپ کے بچے کی تعلیم سے نہیں۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے، مجھے بھی یہاں 2 سال ہونے کو ہے، ہمارا بچہ یہاں پڑھاتا ہے صاحب، مجھے بتائیے کتنی خدمت کرتے ہیں آپ قرآن پڑھانے والے امام کی خطیب جی؟ کبھی آپ نے اس کی مٹھی میں 100 روپیہ بھی دیا ہے کہ میرا بچہ اس کے پاس پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے؟ بولیے، یہ ہمارے رویے کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ جہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے تو کتنی خدمت کرتے ہیں آپ اس کی، اور جو آپ کے بچے کی تعلیم کا فکر مند بھی نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد بس فیس کارڈ کے اوپر سائن ہوتے ہیں کہ 1000 روپیہ 2000 3000 فیس ہے، مہربانی اس کو بیچ دے، پھر دینی پڑتی ہے آپ کو، ٹیویشن سے 1 دن اوپر ہو جائے، فیس 5 کو آنی تھی 6 ہو گئے ہیں، 6 تاریخ آ گئی ہے، مہربانی کرے فیس بھیج دے۔ لیکن یارو جس تعلیم نے دنیا میں رہ جانا ہے، اس کے لیے اتنی مشقت، اتنی محنت، اور جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے اس کے لیے ہماری توجہ ہی نہیں۔ دین اسلام کو سمجھے۔ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا بلال پورے مدینے میں اعلان کر دو، اللہ کرے اس بات کو آپ سمجھ جائیں۔ میرے پاس تو پھر اس سے آگے الفاظ ہی نہیں نا، میں تو اس سے آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میرے پاس تو پھر الفاظ ختم ہے بالکل۔ حضرت بلال سے فرمایا پورے مدینے میں اعلان کر دو، جس کے 2 بیٹے ہیں وہ 1 بیٹا دین کے لیے دے، جس کے 2 بیٹے ہیں وہ 1 بیٹا دے، جس کے 4 بیٹے ہیں وہ 2 بیٹے دے، جنگ کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ اعلان کیا تو باپردہ خاتون، نوجوان، 25 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، نوجوان، برقع پہنا ہوا ہے، باپردہ، 7-8 ماہ کا بچہ لے آئی دودھ پیتا، 7-8 ماہ کا بچہ لے آئی دودھ پیتا۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، کیا کیا درد دل آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر ہمیں شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری بات سے آگے بولتی ہے، ہماری سوچ سے آگے بولتی ہے، ہمارے لب و لہجے سے آگے بولتی ہے۔
तो फिर सीधी सी बात है, जितना दीन सिखाओगे बच्चा उतना ही एहतराम करेगा। चार्ल्स एक राइटर है, अंग्रेज राइटर है, उसकी किताब इंग्लिश के अंदर भी है, हर जुबान के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो इसकी हो चुकी है। मैंने उस किताब के अंदर एक जुमला पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। हैरत मुझे ये हुई, उसकी ना वाइफ अपने दो बच्चे लेकर ना अमेरिका की यूरोप के अंदर मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। मस्जिद के इमाम साहब नमाज पढ़ाई तो औरत को देखा तो इमाम साहब उठे तो मस्जिद के बाहर चले गए। उनसे पूछा क्या बात है? कहा जो तालीम यहां बच्चों को देते हैं ना, मेरे बच्चों को भी वो तालीम दे। कहा आप तो यहूदी हैं, आपके बच्चे तो कुरान नहीं पढ़ेंगे। कहा आप इतनी मुतासर क्यों है इस तालीम से, आप इतनी गर्जमंद क्यों है इस तालीम की? उसने कहा हमारे हमसाए हैं, मुसलमान हैं, जब उनके बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना और आकर अपने माँ और बाप का हाथ चूमते हैं, आकर हाथ बांध के इस्तकबाल करते हैं अपने वालिदैन का, निगाहें झुका के बात करते हैं, कभी ऊंचा नहीं बोलते, हमें अच्छा लगता है, तो अगर मुसलमान ही करे शिकवा कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, तो देखे फिर कमजोरी कहाँ है, मर्ज कहाँ है, खला कहाँ रह गया है? क्या करना चाहिए आपको, क्या तलब होनी चाहिए आपकी? वो बात बड़ा मैं क्या कर रहा था जी, जब सुबह बच्चा माँ बेचती है, मस्जिद में दरखास्त करते हैं कि खुदारा बच्चे को बेच दे, तो माँ ने कभी ये नहीं देखा कपड़े पाक है कि ना पाक है, कहीं पेशाब तो नहीं कर दिया, यूं ही कान से पकड़ा, चुटकी लगाई, चलो मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए। फिर बच्चे शौक से पढ़ते भी नहीं, उनको पता है कि जिस रवैये से हमें भेजा गया है हमें उसी रवैये से पढ़ेंगे ना। मेहरबानी करें, अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचाइए, अपनी नस्लों को ज़ाया होने से बचाइए, अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, उनको दीन इस्लाम की अहमियत बताइए, दीन इस्लाम की कदर बताइए अपनी नस्लों को, अपनी नस्लों के सीनों में इस बात को डालिए कुरान की अहमियत क्या है, इस्लाम का वकार क्या है, नबी पाक के इस फरमान की अजमत क्या है, उनको समझाइए, ताकि कल आप कब्र में हो, जब आपका बेटा कब्र के ऊपर खड़ा होकर हाथ बांध के सूरह मुल्क पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, रहमतें तुम्हारी कब्र के अंदर तक चली जाए। नस्लें बचाए साहेब, नस्लें मैथ नहीं बचा सकती, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके पास बचाओ का सामान नहीं है साहेब। इंग्लिश के पास नस्लें बचाने के लिए कोई रूल मॉडल नहीं है, नस्लें कुरान बचाएगा आपकी, नस्लें मेरे हबीब का दीन बचाएगा आपकी, नस्लें इस्लाम ने बचानी है आपकी। सुनिए जरा, मैदान बदर में सहाबा कराम खैमे लगाए, मैदान बदर में मेरे महबूब सजदे में चले गए, या अल्लाह सुबह बदर का मार का लगना है, आमना सामना होना है काफिरों के साथ, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, उनके पास जंगी सामान भी ज़्यादा है, परवरदिगार आलम मेहरबानी फरमा, अपनी जितनी मेहनत है ना मेरी सारी मैदान बदर में ले आया हूँ मैं, अगर आज इनमें से कोई बचा ना तुझे रब कहने वाला फिर कोई नहीं होगा, ये सारी मेहनत है मेरी। अगर तू चाहता है कि तेरे इस्लाम का झंडा सर बुलंद रहे, तेरे इस्लाम का वकार ऊंचा रहे, तो या अल्लाह मेहरबानी फरमा, इनकी मदद फरमा, अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, नाज़िल होने वाले कुरान के लिए इनकी मदद फरमा। फिर 5000 फरिश्तों की मदद आई थी। कितने फरिश्तों की? 5000 फरिश्तों की मदद आई जबरील अमीन की क़यादत में, इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। तो भेजा किसने? भेजा किसने? मांगा किसने?
اور کرنے آیا کون؟ قیادت کس کی؟ جبریل آمین علیہ السلام کی۔ تو پتہ چلا دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، نبی پاک کی بھی سنت ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ شاید آپ کی سوچ اندانی یہ سوچ رہی ہوگی کہ کیا باتیں قاری صاحب کر رہے ہیں، لیکن اصل دین کا مغز روح رواں یہی ہے۔ جس کے پلے دین اسلام کی اہمیت کا سرٹیفکیٹ نہیں نا، وہ بھی کوئی بلا انسان ہے، وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ ہاں آگے سنیے جناب، نبی کریم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ہجرت سے پہلے، ابھی ہجرت نہیں فرمائی آپ نے۔ کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں، کون سے الفاظ کا میں انتخاب کروں کہ اس کا ذائقہ آپ کی روحوں میں اتر جائے؟ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، اونٹ کی اجری باری ہوتی ہے کہ ہلکی ہوتی ہے؟ ذرا بولیے گا، سارے بولیے گا، باری ہوتی ہے نا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، میرے محبوب کی گردن کے اوپر، یہاں کمر کے اوپر تو کھڑی نہیں ہونی تھی، کیوں جی؟ یہاں سر کے اوپر، گردن کے اوپر اونٹ کی اجری کافروں نے پھینک دی، اور ساتھ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پاس کھڑے ہو کے مذاق۔ حضور سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، آنسوؤں کا سیلاب نکلا میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے۔ جا کر کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بتایا، کہ فاطمہ آج تو کافروں نے حد کر دی ہے، آج تو تیرے باپ کے اوپر اونٹ کی اجری پھینک دی ہے، حضور سر اٹھا نہیں پا رہے۔ سجدہ پاک آئی چادر بطول اوڑھ کر حرم کعبہ میں آئی، تو مجھے بتائیے اتنی باری عورت ذات بھی ہو، اتنی باری اجری ہو، یارو کیا الفاظ ہے، کیا وہ رنگ تھا، وہ کیا لب و لہجہ تھا۔ زہرا پاک نے بڑی دیر لگا کر اپنے بجاد کے اوپر سے اجری کو پیچھے کیا، بڑی دیر لگا کر اجری کو ہٹایا، اپنی بطول والی چادر کے ساتھ اپنے بابل کے آنسو صاف کیے، اور ساتھ وہ جو لگا ہوا تھا اپنے باپ کو آب زمزم کے کنویں پہ لے گئی، اور وہاں جا کر آب زمزم کے کنویں سے وہ ساری زلفیں، وہ سارا کچھ دھویا۔ کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا، آخری الفاظ سنیے گا ذرا۔ بیٹیاں جو ہوتی ہے اپنے باپ کا غم، اپنے باپ کا دکھ سہ نہیں سکتی، یاد رکھیے گا۔ بیٹیاں اپنے گھر میں جتنی مرضی سخی ہو، باپ کا دکھ بہت باری سمجھتی ہے، باپ کا صدمہ بہت باری سمجھتی ہے۔ سنیے یارو، کیا الفاظ، میں کہاں سے الفاظ لے کر آپ کے سامنے یہ گفتگو کروں۔ جب وہ میرے محبوب کی زلفیں دوئی صاف کی، زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر زہرا پاک نے آسمان کے اوپر نگاہ اٹھائی، کہا یا اللہ اب بتا تو دینا کہ تو میرے مصطفیٰ پہ راضی ہے کہ نہیں، بتا ہی دے کہ تو راضی ہے کہ نہیں، کوئی پیغام، کوئی میسج آ ہی جائے کہ تو کریم میرے رحمت والے محبوب پہ، رحمت والے باپ پہ تو راضی ہے۔ کیا حال کر دیا کافروں نے، اور ساتھ پھر مذاق کر رہے ہیں، یا اللہ جس دین کی یہ میرے باپ تبلیغ کرتے ہیں اس دین کو تقویت ملے گی، اس دین کو اونچائی ملے گی،
उस दीन को वकार और इज्जत मिलेगी? उस दीन के अंदर रहकर कोई सजदा करेगा, उस सजदे पे नाद होगा किसी को? जबरील अमीन को आना पड़ा, जबरील अमीन को साहिब आना पड़ा। महबूब, हम इसकी कीमत लगाएंगे, हम इसकी कीमत लगाएंगे। फिर वो वक्त भी आया, पहले अजानें छुप छुप के होती थी, पहले अजानें छुप छुप के होती थी। हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर की जवानी जाएगी फिर किस खाते में? उमर फिर मर ना जाए? अगर उमर के होते हुए अजानें छुप के पड़ी जाए, आका बिलाल से कहे अजान मस्जिद के सिर में पड़ी जाए, हरम के सिर में पड़ी जाए, और मैं नंगी तलवार से पहरा देता हूं, देखता हूं कौन आके रोकता है। मैं देखता हूं कौन आके रोकता है। एक ये भी दौर आया इस्लाम पर, एक ये भी अंदाज बना इस्लाम पर। लेकिन अगर हम इससे आगे चले जाएं, इससे आगे की बात सुन लीजिए। हमने इससे भी आगे दौर देखा, जो रवायात में पढ़ा, जो हदीसों में पढ़ा, वो क्या है? सहाबी हैं, जंग लड़ते लड़ते उनका बाजू कट गया, ये दाया बाजू था, तो यहां से ना थोड़ा सा मांस, यहां से थोड़ा सा मांस साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने उसको रखा पांव के नीचे। ये बातें बहुत मुश्किल है कि आप समझ जाएं, क्योंकि हमारी तवज्जो दीन की तरफ कम है। हम तो जिस दिन 5 नमाजें पढ़ ले, हम तो कईयों को बताते हैं कि मेरी 5 हो गई, और जिसने 5 नमाजें बचा के पढ़ी हो, मैं क्या बोलूं आपके सामने, मैं क्या लफ्ज लाऊं, कहां से इंतखाब करूं अल्फाज का? पहले जंग लड़ के दीन को बचाना, अपना माल देकर, अपनी औलाद देकर, वतन कुर्बान करके, अपना माल, तन, मन, धन पेश करके पहले इस्लाम को बचाना। इस्लाम बच जाए फिर कहना अल्लाहु अकबर। ये और है वो घर से उठ के मस्जिद में आके नरम कलील, एसी, पंखे, लाइट, पानी, हर चीज की सहूलत मौजूद, और मुश्किल से 5 नमाजें पढ़ के हमारा सर फख्र से इतना ऊंचा हो जाता है, हम जमीन से इतने ऊंचे होते हैं, हमारी 5 नमाजें मुकम्मल हो गई। साहब नाज किस बात पे है? हमें फख्र किस बात पे है? हमारे तो बच्चे ज़िबा नहीं हुए, हमारा वतन कुर्बान तो नहीं हुआ, हमारे मकानों की बोलियां इस्लाम के लिए नहीं लगाई गई, हमारी जान तो नहीं गई। उसको, उस बाजू को उतार दिया। किसने पूछा ये क्या किया? कहा दीन इस्लाम की अहमियत में थोड़ी सी रुकावट था, ये दीन इस्लाम की अहमियत में, कदर कीमत में ये रुकावट बन रहा था। दुश्मनों के साथ मैं लड़ रहा था तो ये रुकावट था। मुझे ऐसा जिस्म नहीं चाहिए जो मुस्तफ़ा के दीन में रुकावट बने। क्या बात करते हैं यार आप? कहाँ सोते हैं, किस तरह जागते हैं, क्या आपका रवैया है, क्या आपकी सोच है? ये सुनिए, ये दीन इस्लाम, कदर मंजर देखे दीन इस्लाम भी क्या है। जंग खत्म हुई, बाजू उधर पड़ा हुआ है। सहाबा जब फारग हुए तो मेरे महबूब ने फरमाया इधर आओ। रहमत वाले लबों से माथे से बोसा दिया, बोसा ही नहीं दिया, मेरे महबूब ने ऐसे बाजू फैलाए, कहा यार सीने लग, मेरे सीने लग, तो मेरे दीन की अहमियत को समझता है, आओ सीने लगो। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हसरत भरी निगाहों से अपने कटे हुए बाजू को देखा उसने, हसरत भरी निगाहों से कटे हुए बाजू को देखा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आंखें साफ कर, आंसू साफ कर, इधर आ, पकड़ बाजू अपना, रखा उस जगह पे, लुआबे दहन मेरे मुस्तफ़ा ने लगा के उसको फौरन ठीक कर दिया। इस इस्लाम ने कीमत फौरन दी है अमीर जानने वाले को। हजरत कतादा आते हैं, आंख पे तलवार लगती है, नेज़ा लगता है, आंख बाहर आ जाती है, उसको अपने हाथ पे रखते हैं। जंग खत्म होती है, हजूर खैमे में होते हैं। हजूर फरमाते हैं कतादा ये क्या है? हजूर दाई आंख निकल गई है, नेज़े से, तलवार की वार से। हजूर मेरी
तली के ऊपर, मेरी हथेली के ऊपर पड़ी हुई है। कहा अच्छा इधर ला, आंख रखी आंख वाली जगह पे, लुआब दहन निकाला, कहा दादा आंख तो खोल। उसने कहा जब आंख खोली, जो बाईं साइड थी उससे कम नजर आता था, जो दाईं साइड थी वहां से ज्यादा नजर आता था। ये दीन इस्लाम की साहिब अहमियत है, ये दीन इस्लाम का वक़ार है, ये हमारे दीन का अंदाज है। आंख चली गई परवाह तक नहीं की, बाजू कट गया परवाह तक नहीं की, औलाद ज़िबा हो गई परवाह तक नहीं की। मैं कहता हूँ वतन कुर्बान कर दिया गया, दीन इस्लाम को नीचा नहीं होने दिया। ये अंदाज उनका है जिनके सीने में वो दर्द है दीन का। हमें अपनी कज़ा नमाज़ों का दर्द नहीं होता, हमारे रमज़ान के रोज़े छूटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, हमारी ज़कात सही मानों में अदा नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता। हम तो अपने रोज़ों का फितराना सही अदा नहीं कर सकते, हमारे पास नमाजों का वक़ार नहीं। साहब मुझे बताइए, 5 नमाजें हमारा सर ऊंचा करती है, बताओ जिन्होंने हर चीज़ कुर्बान करके 5 नमाजें बचाई है उनका आलम क्या होगा। सजदा ज़हरा पाक ने जब ओजरी हटाकर जमजम के कुएं पे जाकर अपने करीम बाप को धोया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह मेरे बाप ने बड़ी कुर्बानी दी है, कभी ताइफ वाले परेशान करते हैं, कहीं मक्के वाले तेरे नबी को परेशान करते हैं, और मेरा बाबुल फिर भी सब्र करता है। तो मेहरबानी फरमा बताई दे, जब लहू लुहान करते हैं, जब खून गिरता करी महबूब का, या अल्लाह सली तो दे दे जिस दीन इस्लाम के लिए ये सारा कुछ होता है। जख्म आते हैं, ओजरी फेंकते हैं, दर्द होता है, खून से लथपथ हो जाते हैं, उस इस्लाम को इज्जत मिलेगी ना, उस दीन को वक़ार मिलेगा ना। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तेरा जाना बनता है मेरे महबूब के पास, जाकर मेरे महबूब से कह दो, मेरे महबूब ओजरी फेंकी गई, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, मक्के वाले परेशान करते हैं, हम एक एक लम्हे की कीमत देंगे आपको। इससे भी आगे सुनिए, मक्के वालों ने मारा हजूर जान बचाने के लिए, उतबा था उसका बाग था अंगूरों का। सुनिए क्या बात करते हैं, कहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं साहिब, कहाँ 40, 50, 75 साल हमारे गुजर गए, कहाँ 80 साल हमारे गुजर गए। मेरे महबूब को इतने पत्थर मारे हजूर बेहोश हो गए। हज़रत ज़ैद कहते हैं मैंने उठाया, अपने कंधों पे हजूर को रखा, कहते उतबा का बाग था, मैं बार बार गिरता, बड़ी मुश्किल से महबूब को संभाला दिया। मैं उतबा के बाग में चला गया, अंगूरों की बेलें जरा ज्यादा थी तो मैं छुप के लेके बैठ गया। काफरों से हजूर बेहोश है, होश नहीं कर रहे। मैंने हजूर का सर अनवर अपनी गोद में रखा, अपनी चादर से हजूर के आंसू साफ कर रहा हूँ, कभी खून साफ करता हूँ। उतबा जान का दुश्मन था, उतबा हजूर का जानी दुश्मन उतबा था। इसके डेरे पे आकर प्रोपेगेंडे होते थे, किस तरह माज़अल्लाह कत्ल करना है महबूब, क्या क्या प्लानिंग कर, सब कुछ उसके डेरे पे होता था। उतबा शैबा का डेरे पे, दोनों भाई थे। तो उसने, वो अपने बाग के अंदर मौजूद था, उसका गुलाम था अब्दास। जब देखा, यार मुझे बताओ वो हालत क्या महबूब की हालत होगी कि जिस हालत को देखकर दुश्मन को भी रहम आया होगा। दुश्मन है उतबा, दुश्मन, जान का दुश्मन। मेरे महबूब की क्या हालत होगी, वो क्या कैफियत होगी। उसने अंगूर तोड़े, चश्मे से धोए,
कुएं से अंगूर धोए, प्लेट में रखे, गुलाम से कहा जाओ जाके उन्हें कहो ये अंगूर खाएं। जब वो गुलाम लेके जाने लगा तो पीछे उसने आवाज़ दी, उससे हाथ जोड़ के कहना दुश्मनी अपनी जगह, मेहरबानी ये वापस ना करना, मेहरबानी ये मेरे भेजे हुए अंगूर वापस ना करना। सुनिए, वो गुलाम लेके आया, गद्दाद उसका नाम था, उसने वो अंगूर दिए। करीम महबूब ने एक अंगूर पकड़ा खाने के लिए, मुंह में डाला तो खा नहीं पा रहे, हाथ भी कांप रहे हैं, खून इतना बह गया, करीम महबूब इतना खून बह गया तो कुछ बातें शुरू हो गई। उसने कहा आप कौन हैं? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं दीन इस्लाम की तबलीग करता हूँ तो ये मुझे मारते हैं, कहते हैं हमने आपको दीन की तबलीग नहीं करने देनी। तो कहा आप अल्लाह के नबी हैं? आपने फरमाया तू कहा मैं नीलोफर का हूँ। कहा अच्छा हज़रत इलियास इस्लाम के शहर के हो? कहा आप कैसे जानते हैं? आपने फरमाया वो मेरा भाई है। उन्होंने फरमाया हज़रत इलियास इस्लाम मेरे भाई हैं। जब ये गुफ्तो शनीद होती रही तो कहा आप इतने फ़िक्रमंद किसके लिए हैं? फरमाया अपने दीन के लिए। किसके लिए फ़िक्रमंद हूँ? मैं अपने दीन के लिए। दीन के लिए हुजूर ने बड़ी मारें खाई, बड़ी मर्तबा करीम महबूब को ज़ख्मी किया गया, इस दीन के लिए बहुत कुछ किया गया। लेकिन जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन थे ना, हज़रत इमाम अली मुकाम के पास ना कि यजीदी आया, जब आप तन्हा रह गए, जब आप अकेले रह गए तो वो पैगाम लेके आया, शिमर का पैगाम लेके, बिन ज़ियाद का पैगाम लेके आया। हुसैन से कहो जंग ख़त्म हो सकती है, जंग ख़त्म हो सकती है अगर अब भी अपना फ़ैसला बदल लो, अपना फ़ैसला। आपने फरमाया इधर आदर आ, मैं तुझे बताता हूँ हकीकत क्या है, मैं क्यों नहीं अपनी बात से हट रहा, असल बात क्या है। तो वो जो है मेरी बात की तरफ, अल्लाह करे इसका जायका आपकी रूहों में उतर जाए, अल्लाह करे ये बात मैं आपको समझा सकूं, इस बात को अल्लाह मेरी ज़ुबान पे वो अल्फाज जारी कर दे कि जो आप आसानी से समझ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो, 9 मुहर्रम की रात थी, मैं अपने खैमे में था, मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं कुरान पढ़ रहा था, इस्लाम ने मेरे खैमे का ऐसे पर्दा उठाया। ये तसव्वुराती बातें हैं, ये ईमान के वेड़े में जला के मेरी बात को सुने। कहा ऐसे इस्लाम पे मुश्किल वक़्त था ना वो, क्यों जी, कितना मुश्किल वक़्त था कि मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ यजीद ने घोड़े बांध दिए, 3 दिन घोड़े बांधे गए, नमाज नहीं होने दी, अजान नहीं होने दी। एक सहाबी 3 दिन भूखा प्यासा मस्जिद के कोने में साफ में छुप गया, छुप के वहीं पे उसने छुप के ही आहिस्ता से अजान कही। कहा तेरी जुर्रत ये है ना कि मैंने अजान होने नहीं देनी, लेकिन भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा की इस मस्जिद के हर वक़्त की अजान आएगी। छुप के अजान पढ़ता रहा 3 दिन। जब आंखों से ओझल होते तो या इशारों से, इस रवायत का हवाला आगे मौजूद नहीं है कि नमाज पढ़ी किस तरह। जब बंदा छुपा हुआ हो तो कैसे नमाज पढ़ सकता है? क्यों जी, क्यों जी? इशारे से पढ़ ली, बगैर वुज़ू के पढ़ ली, या जिस तरह, बहरहाल ये हमारा मैटर नहीं है। उसने कितना मुश्किल वक़्त था कि मस्जिद नबी में जमात नहीं हुई, खुतबा अज़ान जुमा नहीं हुआ, रोक दिया गया, इतना मुश्किल वक़्त था। हुसैन फरमाते हैं सुन, जाके यजीद को बताना ये मेरी बात क्या है। कहा उसे कहना हुसैन 9 मुहर्रम की रात को अपने खैमे में था, सुबह 10 मुहर्रम का सूरज बड़ा मुश्किल का तलू होने वाला था। मुझे इस्लाम ने कहा हुसैन मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया है, आज से पहले और या आज के बाद जितने भी लोग आएंगे वो इस्लाम की पनाह लेंगे। हाजी लेगा तो इस्लाम की पनाह, नमाजी लेगा तो इस्लाम की पनाह, हाफिज लेगा तो इस्लाम की पनाह, कुरान लेगा तो इस्लाम की पनाह। क़यामत की सुबह तक लोग इस्लाम कहते हैं मेरी पनाह लेते रहेंगे। लेकिन हुसैन आज मुझे पनाह चाहिए। शाह अस्त हुसैन, मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन,
बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। कायनात वालों की पनाह दीन है और दीन की पनाह हुसैन की कोक है। कहा मुझे पनाह चाहिए, हुसैन ने फरमाया आओ, आ जाओ, पनाह मिलेगी। कहा हुसैन बड़ा मुश्किल है। कहा तुझे पनाह देने के लिए 18 साल का अकबर जाएगा तो परवाह कोई नहीं। क्यों? मैंने अपने नाने से सुना है दीन की बड़ी अहमियत है। तुझे बचाने के लिए मेरा 6 माह का अस्कर भी जाएगा तो मुझे परवाह नहीं। मेरे खेमों को आग लग जाएगी तो मुझे परवाह कोई नहीं। मेरा पानी बंद है ना तो कोई परवाह नहीं। हमारे साथ जो सलूक हुआ है तो कोई परवाह नहीं, तुझे पनाह मिलेगी। इस्लाम तुझे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे हुसैन ने फरमाया जाके यजीद से कहना अगर इस्लाम की कदर थोड़ी होती ना तो मैं यहाँ बीवियाँ अज़वाजे मोहतरात दूध पीते बच्चे ना यहाँ लेके आता। ये दीन की अहमियत थी तभी तो ले आया हूँ, तभी तो ले आया हूँ। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो ज़मीन से इतना फुट ऊंचा हो जाते हैं जी, 5 हो गई हैं। 5 बस नमाजें पढ़ना, नरम कलीन, एसी, पंखा, हीटर, ठंडा गर्म पानी, हर चीज़ मौजूद। 5 नमाजें इस माहौल में पढ़कर हमारा इतना जो है वो सर कद ऊंचा होता है। मुझे बताओ पहले खुतबे, नमाजें, अजानें बचाना, मैं आपको समझा नहीं सका जी, मैं आपको बता नहीं सका इसका मगज़ क्या है। पहले उसके लिए औलाद कुर्बान करना, अपना माल कुर्बान करना, अपना वतन कुर्बान करना, खैमों को आग लगाना, पानी बंद करवाना और फिर नमाज पढ़ना। क्यों जी? यूं ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बार बार तैफ के बाजारों में जाकर पत्थर नहीं खाते रहे। और जिस जगह से एक बार किसी बंदे का दिल टूटता है ना, दोबारा उसको मुंह नहीं लगाता, दोबारा उससे कलाम नहीं करता। ये हमारी कमजोरी का आलम है, हम इतने कमजोर हैं। लेकिन करीम महबूब को तैफ के बाजारों में बार बार मारा गया, मदीने के मक्के के बाजारों में बार बार जो है परेशान किया गया, ओजरी तक फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए। लेकिन मेरे महबूब ने हार नहीं मानी। जोली उठा, फरिश्ते आए फिर हजूर हमें कहें, हम इनको तहस नहस कर देते हैं। जोली उठाई, या अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती, इनकी नस्लें मेरे ऊपर कुर्बानी देंगी, इसकी नस्लें मेरे वकार को, मेरे दीन को समझेंगी। तो भी बड़े बड़े पैदा हुए। अबू जहल का बेटा हज़रत अकरमा थे, सहाबी बने। हज़रत अकरमा, अबू जहल तो दुश्मन था, बेटा हजूर के चेहरे का शदाई था। क्यों जी? हाँ आगे सुनिए, हदीस पाक सुने हैं। हदीस पाक है बुखारी शरीफ की और तिरमिज़ी शरीफ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। हुज़ूर फरमाते हैं तुजिउल आमाल यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन तमाम अमाल जमा हो जाएंगे। क़यामत के दिन तमाम अमाल, सारे अमाल जमा हो जाएंगे। हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, खतरा, जो कुछ भी नेकी है सारे अमाल जमा हो जाएंगे। नमाज हाज़िर होगी। फतुजिउल सलात, या अल्लाह मैं नमाज हूँ। फ़यक़ूलु या रब्बु अना सलात, कहा अगर तू सलात है तो फिर ठीक है। बेत फ़यक़ूल इन्नका अला खैर, फरमाया तू खैर पर है। आगे फरमाया रोज़ा, सुम्मा युजुल सियाम फ़यक़ूल या रब्बी अना सियाम फ़यक़ूल इन्नका अला खैर, या अल्लाह मैं रोज़ा हूँ। फ़इन्नका अला खैर, फरमाया तू भी खैर पर है, तू भी खैर पर है। आगे आ जाइए। इसी तरह हज, इसी तरह उम्रा, इसी तरह हर नेकी। जब बारी आएगी दीन इस्लाम की, जब बारी आएगी दीन इस्लाम की, हुज़ूर फरमाते हैं वो जिस्मानी शक्ल में आएगा। इस्लाम जिस्मानी शक्ल में आएगा, जिस्मानी शक्ल में। फिर क्या होगा? फरमाया फ़यक़ूलु या रब्बी अंत सलाम व अना सलाम, या अल्लाह मैं इस्लाम हूँ, मैं भी इस्लाम हूँ, तू भी इस्लाम है। इस्लाम कहेगा मैं भी इस्लाम हूँ और तू भी इस्लाम है। सुनिए, इस्लाम हाजिर होगा जब ये कहेगा। अल्लाह फरमाएगा इस्लाम बिकल यौम अखद व रब्बिका ऊती, कहा आज इस मजमे में, आज मैदान माशर में अरबों खरबों लोगों के सामने, 1,24,000 कमोबेश नबियों के सामने, सारी उम्मतों के सामने
जिस बंदे को मैंने जो देना है मैंने तेरी वजह से देना है, जिसने तेरी कदर की है मैंने उसको ही देना है, जिसने तेरी बेकदरी की है उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिसने तेरी नहीं मानी आज मैंने उसकी नहीं माननी, जिसने तेरी नहीं सुनी उसकी मैंने नहीं सुननी, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। आगे फरमाया जिसने तेरे साथ बेवफाई की है आज उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। आगे फरमाया जिसने तेरे साथ प्यार किया है आज मेरे मोहब्बत और प्यार के साए के नीचे होगा। फरमाया आज अपने से प्यार करने वालों के लिए अल्लाह इस्लाम से मुखातबा फरमा रहा है, आज अपने साथ प्यार करने वालों के लिए मुझसे मांग लो जो मांगना है। मुझसे प्यार करने वालों के लिए तो मैं मांग लो जो मांगना है। मुझे बताओ फिर इस्लाम ने अगर आपके लिए मांगा होगा, अगर आप इस्लाम के वफादार होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, तो बताओ फिर नफ्स और नफ्सी के आलम में इस्लाम ने आपके लिए क्या मांगा होगा, क्या मांगना होगा? जिस मुश्किल में आप होंगे वही मांगेगा ना, क्यों जी? इसलिए साहब इस्लाम की हमें कदर करनी होगी। मैं फिर दोहरा दूं, हज़रत उमर बिन खिताब हज असवद के सामने खड़े हैं, फरमाते हैं खिताब का बेटा उमर तुझे कभी ना चूमता कि तू जन्नत से आया है, तुझे हज़रत आदम लाए हैं। अगर खिताब का बेटा उमर तुझे चूमता है फ़कत इसलिए चूमता है कि तुझे आमिना के लाल ने चूमा है, तुझे रहमत वाले नबी ने चूमा है, मैं इसलिए तुझे चूमता हूँ, मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। और इस्लाम को हम मोहब्बत की निगाहों से इसलिए देखते हैं, इस्लाम से मोहब्बत इसलिए करते हैं, इसलिए कि इसकी बुनियादों में करीम महबूब का खून है, इसकी रगों में करीम महबूब का। बातें तो बहुत सारी करने वाली पड़ी हैं, बहरहाल हमारा टाइम हो चुका है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।